Hello student, good morning to everyone. Today let us start maths, your second chapter, fraction. Fraction, student, what is fraction? Fraction is a part of a whole. It means student, when कोई whole है suppose और इसमें से any part हम जब लेते हैं कोई भी part तो हम उसको क्या कहते हैं fraction. जैसे हम इसको जब राइट करते हैं यहाँ पे सपोज यहाँ से हमने वन पार्ट शेडेड किया तो हाउ मेनी इन दिस होल 1 2 3 4 पार्ट वन पार्ट शेडेड दैट मीन्स 1/4 we have learned about in junior classes fractions. Now here the definition of fraction, the number of form a by b. It means student कि एनी नंबर है जिसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स नोन एज फ्रैक्शन. इट मीन्स स्टूडेंट एनी नंबर इट कैन बी रिटन एज a by b and a and b are the natural numbers. In a by b we call a as numerator and b as denominator. So student, you have learned in previous classes about fractions. For example, suppose 3/5, 6/2, 9/11, etc. So student, these type of the numbers and numbers can be written as in the form of a by b where this is numerator and this is denominator. It means अपर पोर्शन में जो भी नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा न्यूमरेटर और लोअर में जो भी होगा वो क्या होगा डिनोमिनेटर. सो स्टूडेंट, यू राइट दिस इन योर notebook. Now types of fraction. Student, in previous classes you have learnt about types of fractions like proper, improper, mixed, like, unlike, equivalent and so on. So now let us discuss about them. First, proper fraction. Of a proper fraction, student, we know that a proper fraction in which have the numerator is less than the denominator. It means student, a fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fractions. For this we have some examples. Numerator is less than its denominator. Suppose 3/7. Here student, 3 is in numerator and 7 is in denominator. Here 3 is less than the 7. It means student यहाँ 3 7 से क्या है लेस है. It means ये न्यूमरेटर है जो कि डिनोमिनेटर से लेस है तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन. We have some example. Suppose 4/10, 9/11 and so. These type of fraction is called proper fractions. Now second, improper fraction. A fraction whose numerator is greater than the denominator. Just opposite of proper fraction. Student, improper just opposite होता है proper fraction का. Here numerator is greater than the denominator. For this we have some examples. Suppose numerator is greater than, suppose 5/2. Here numerator is greater than the denominator 5/2. More examples. Suppose 11/7, 12/5. In these fractions have the numerator is greater than the denominator, so these type of fraction is called improper fraction. Now third number, mixed fraction. A number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. Student, a number which can be expressed as the sum of natural number and the proper fraction is called a mixed fraction. It means student, in mixed fraction में एक proper fraction होता है. So student, in proper fraction a natural number and a mixed number, a natural number and a proper fraction. It means student, एक natural number को और एक proper fraction को मिला करके क्या बनता है mixed fraction. For this we have some examples.
Suppose 2 whole 3 upon 5. Student, here we see that 2 write this type, this is the whole number, and 3 upon 5, this is the proper fraction. Proper fraction 2 is whole number and this is proper fraction. So student, here we see that a whole number and a proper fraction मिल करके क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस. फॉर दिस वी हैव सम एग्जांपल. सपोज 1 whole 2 upon 7, 3 whole 4 upon 11. This type of fraction called mixed fraction. Here you carefully look here. 2 upon 7 is proper because here numerator is less than denominator and एक पार्ट अलग से रहेगा जो कि होल पार्ट होगा. तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. नाउ योर फोर्थ नंबर, लाइक फ्रैक्शंस. Fractions having the same denominators but different numerators are called like fraction. It means student कि बहुत जैसे सीरियल वाइज में आपके कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं और उन सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो हैं सेम डिनोमिनेटर है और उनके न्यूमरेटर जो है डिफरेंट है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. फॉर दिस एग्जांपल, सपोज 2 upon 5, 7 upon 5, 3 upon 5, 11 upon 5 are like fractions. Here student, carefully, here 2 upon 5, 7 upon 5, 3 upon 5, 11 upon 5 have the same denominator. 5, 5, 5 and have the different numerator 2, 7, 3, 11. So student, these are called like fractions. Similarly, for unlike fractions, fractions having different denominators are called unlike fractions. So, unlike fractions having the different denominator are called unlike fractions. For this different denominator, it means suppose 3 upon 5, 9 upon 10, 7 upon 11, 15 upon 4 are unlike fractions. So student, here we see that different denominators, all the fractions therefore are called unlike fractions. Now your decimal fractions, or fractions whose denominator is any of the number 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000 etc. is called a decimal fraction. It means student कि कोई फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर क्या हो 10, 100, 1000, 10,000, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर दिस एग्जाम्पल, सपोज 3 upon 10, 45 upon 100, 6 upon 1000 are decimal fractions. Why student these are called decimal fraction? Because it has the denominator 10, 100, 1000. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो क्या होगा, वो डेसिमल फॉर्म में होगा, इसलिए इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. नाउ 7, वल्गर फ्रैक्शन. A fraction whose denominator is a whole number other than 10. इट मीन स्टूडेंट कि उसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या इस तरह का नहीं होगा तो उसे वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में. तो इसके लिए एग्जांपल्स में जो है, सपोज 3 upon 5, 7 upon 20, 9 upon 14 are
वल्गर फ्रैक्शंस। स्टूडेंट इट मीन्स कि जब डिफरेंट टाइप्स का होगा फंक्शन और उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से ये ग्रुप में क्या होगा, वल्गर फ्रैक्शन। नाउ an important property about fraction, student, here if the numerator and the denominator of a fraction are both multiplied by the same number, it means student कि कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का और उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, देन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज। मीन स्टूडेंट कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फॉर दिस वी हैव एग्जाम्पल। स्टूडेंट सपोज 3/4, अब हम इस 3/4 सपोज करिए ये 3/4 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो 6/8 हो जाएगा। और 6/8 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको 3/4 मिल जाएगा। और या फिर आप जो है 2 के अलावा किसी और नंबर से पहले 3/4 आपने फ्रैक्शन लिखा, सपोज 3 से चेंज कर मल्टीप्लाई करिए यहाँ भी, या फिर into 4 student here we multiply by the same number 2 2 2, here 3 multiply 4 student that means कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सारी वैल्यूज़ इक्वल होंगी। जैसे कोई एक फ्रैक्शन है, इसमें पहले हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल होगी। फिर हमने मान लीजिए सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल होगी। सो स्टूडेंट, तो यही प्रॉपर्टी थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अंडरस्टैंड करना है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। A given fractions and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same number are called equivalent fractions. It means student, for example 3/4, 6/8, 9/12, 12/16। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसी सपोज करिए कि कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करने पे जो फ्रैक्शंस हमको मिलते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर दिस वी हैव एग्जाम्पल, सपोज 3/4, ओके स्टूडेंट, 6/8, 9/12, 12/16, these are in group called equivalent fraction. Equivalent fraction. Student, here 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, it means ये 4 fractions जो given हैं ये सब equivalent हैं। How? ये स्टूडेंट 3/4 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 6/8 को सपोज करिए आप सिंप्लीफाई करिए, सपोज 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 को, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा न्यूमरेटर में। और मैंने यहाँ पे गिवन है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो जब ये डिवाइड हो सकता है, ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, और ये 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। तो हमने देखा कि इसका भी आंसर 3/4। तो इसमें किया क्या गया, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 3/4 के इक्वल आ गया। अब इसको चेक करते हैं। अब ये 9/12 है, 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, तो 3 से नीचे भी डिवाइड होगा, 3 4 जा 12। तो स्टूडेंट यहाँ भी 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। न्यूमरेटर में भी 3 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड किया, 3/4 आ रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट कि ये सब क्या है, इक्वल है। अब इसको चेक करते हैं। 3 से 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और नीचे 16, 4 4 जा 16। सो स्टूडेंट हियर वी सी दैट 3/4
एक फ्रैक्शंस था और इनके साथ जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो सब इक्विवेलेंट हैं 3/4 के। और जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई में हमने क्या किया कि इसमें 2 से ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड किया, इसमें 3 से डिवाइड किया, इसमें 4 से डिवाइड किया, तो सारे फ्रैक्शंस हमको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो इस टाइप के जब फ्रैक्शंस गिवन होंगे तो हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, irreducible fraction. A fraction a by b is said to be irreducible or in lowest form if HCF of a and b is 1. It means student, आपको अगर कोई फ्रैक्शंस गिवन है और उन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 हो जाए तो हम उसे इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस बोलेंगे। दैट मीन्स कि हमको जो कोई फ्रैक्शंस अगर उसके लोवेस्ट फॉर्म में है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो वो फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल होगा। अगर नहीं है तो हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में फाइंड करके तब उसको हम बताएंगे कि वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। फॉर दिस वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। सपोज 3/5। स्टूडेंट हियर 3/5, 3 and 5, और इन दोनों का जब आप HCF फाइंड करोगे, 3 का HCF और 5 का HCF जब निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो 1 मिलेगा तो दैट मीन्स कि दिस फ्रैक्शन इज इन इररिड्यूसिबल फॉर्म। जैसे 3 का आप HCF आपने 6th क्लास में यू हैव लर्नड HCF, 3 का HCF फाइंड करना है तो वी फैक्टराइज 3 into 1 एंड 5 को 5 into 1। और HCF में क्या होता है, जो दोनों के फैक्टर में कॉमन हो वो मेरा HCF होता है। तो ईयर 1 and 1, ओनली 1 and 1 कॉमन, सो HCF यहाँ पे 3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 1। तो सो स्टूडेंट हमने देखा कि इस फ्रैक्शन में 3/5 का जो HCF है वो 1 है। सो 3/5 इज इन लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ सपोज सम एग्जाम्पल, सपोज 12/64। Now student, is in lowest form or irreducible fraction. Now let us check here 12 and 64. Firstly we find HCF of 12 and 64. HCF फाइंड करने का एक और मेथड है स्टूडेंट। हियर वी डिवाइडेड 12 by 64। हियर 12 5 जा 60, डिवीज़न मेथड है ये 4, और फिर अब इस 12 को यहाँ रख देते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में इसको लर्न किया है। 4 3 जा 12। फिर हियर जो बचता है ये क्या है HCF। तो HCF यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अब स्टूडेंट हमने देखा 1 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि ये अभी रिड्यूस होगा। तो जो 4 यहाँ पर आया है इससे हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 एंड इन डिनोमिनेटर 64 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। हियर स्टूडेंट 3/16। अब 3/16 को आपको चेक करना है कि इसका HCF 1 है कि नहीं। अगर HCF 1 होगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 into 1, और 16 का 2 into 2 into 2 into 1 होगा। तो हमको दोनों ही कंडीशन में 1 1 कॉमन मिलेंगे। तो इनका HCF 1 आ रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट दिस इज इन लोवेस्ट फॉर्म आर irreducible fraction. So this and this your example of irreducible fraction. Comparing fractions. Now comparing fractions. Suppose student when we have any fractions, then we compare which fraction has greater or a smaller. It means student कि suppose कोई 2 fractions given होंगे तो उन दोनों fraction में से कौन सा greater होगा, कौन सा smaller होगा। तो इसको हम comparing fractions के थ्रू जानेंगे। तो इसके लिए क्या मेथड है देखते हैं। Suppose student let a/b and c/d be 2 given fractions, कि यहाँ पर a/b एक फ्रैक्शन है, c/d अदर फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि विच इज़ ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल। तो उसके लिए क्या मेथड होंगे, 1 by 1 एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज a/b, अगर a/b c/d 2 फ्रैक्शन है, अगर a/b ग्रेटर होगा, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है ना, तो ग्रेटर कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि जब AD ग्रेटर देन BC होगा। दैट मीन्स स्टूडेंट हियर वी सी दैट AD, यानी कि ये D यहाँ आ गया है। इट मीन्स AD का क्रॉस मल्टी,
ये इसके पास यहाँ क्रॉस मल्टीपल हो गया और बी सी यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो ए और डी का यहाँ मल्टीपल करेंगे, ए का डी में जो आएगा और इधर बी का सी में मल्टीपल करेंगे जो आएगा। तो हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा, अगर छोटा हो और ये बी सी छोटा होगा तो फॉर दिस एग्जाम्पल सपोज 3/5 and suppose 2/7. Student, we have to compare these fractions which are greater or smaller. For this, we multiply in cross section. 7 3, ये 7 3 के पास चला जाएगा क्रॉस मल्टीपल में, 3 × 7, और ये 5 यहाँ चला आएगा 5 × 2। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है, 3 7 जा 21 और ये 5 2 जा 10, विच इज़ ग्रेटर, 21 ग्रेटर हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो 3/5 है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। 3/5 इज ग्रेटर 2/7, इज ग्रेटर दैन द 2/7। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट A/B C/D कब इक्वल होगा, जब हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो जब इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीपल करने पे न्यूमरेटर इक्वल होगा, तो हम कह देंगे कि इक्वल है। एग्जाम्पल्स 2/7 एंड सपोज 7/2। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके, नहीं। सो स्टूडेंट, A/B इज इक्वल टू C/D, इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होने के लिए हेयर एग्जाम्पल 3/4 6/8। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करके चेक करेंगे। तो 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, और 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, विच आर इक्वल। सो स्टूडेंट, हियर ओनली फॉर comparing two fractions, we multiply in cross section, then we compare both numbers which are greater or smaller. Similarly for third number, for this example suppose कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 3/2 और 4/5। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल करके इसका, यहाँ पर 3 × 5 and 2 × 4, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8. Here we see that 15 is greater and 8 is smaller. So student, it can be written as 3/2, which is smaller. For smaller, 4/5 is smaller than the 3/2, because here in when we multiply in cross section, 3 5 ja 15, 2 4 ja 8, here 8 4/5 के प्लेस पर है, that means 4/5 is less than 3/2. So student, these are comparing fraction. Now in your notebook you write all about the fractions, definition of fraction, type of fraction, one by one you write with example in your copy, and this is your, and you understand all the topic carefully, and after seeing the video you write in your notebook. Okay, thanks.